Hello guys, my name is Roshan Nandurkar and you are watching my YouTube channel Java and Python Geek. So in this video tutorial, what we are discussing here, we are discussing Spring MVC CRUD operation. So in some previous session, what we discussed there, in the first session we discussed there how to set Spring MVC setup. How to set Spring MVC setup we discussed in the first session, and in the second session we discuss how to open launching page, how to open home page we discussed there. And in the second session what we discussed there, third session, and in the third session what we discussed there, how to return data backup. Okay, data backup. Okay, in the third session. And in the fourth session what we discussed there, how to insert, okay, how to insert CRUD operation, how to not CRUD operation, how to insert record in tables, how to insert records in tables we discussed there. Okay, so now in this session what we have to discuss here, how to receive some values, okay, some values. It means to say how to receive records from controller to your web page. Okay, inserted records, how to select records, how to display records. Okay, here we have to discuss here. So now for that we have in org, not in org. Okay, so in this project, so in org.test.controller package, in org.test.controller package, okay, we have a person controller, class here. Okay, we have person controller class here. Okay, and now we, in the previous session we discussed how to submit record, and how to receive action value, how to receive button value. Dynamically we can change the action value, dynamically we can change the button value. Okay, and then how to receive backup support, okay, we discussed there. And this is our validation. Okay, and then if the validation, okay, if validation is correct, okay, then we said, okay, then we create the person class object. Okay, here we create person class object, and then this person class object we submit it in database. Okay, तो ये कुछ हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर में, प्रीवियस सेशन के अंदर में हमने डिस्कस करा. तो अभी हमें क्या करना है कि हमें एक यहाँ पे सर्विसेज लिखना है, सर्विसेज. ओके, हमने डायरेक्टली यहाँ पे कंट्रोलर के अंदर में हमने यहाँ पे रिकॉर्ड सबमिट करा, बट द सेम टास्क हम यहाँ पे क्या करेंगे कि सर्विसेज क्लास के अंदर में लिखेंगे गाइस. सो उसके लिए मैं org.test.controller पैकेज पे राइट क्लिक करके, व्हाट आई एम डूइंग हियर, आई एम राइट क्लिकिंग ऑन org.test.controller package. I am clicking on there. Okay, and then I will right click on it, and then I will create now new package here, and the package name I will say, okay, under controller package I will create services package, service. Okay, services package I will create here. Okay, and then after creating services package, okay, so now you can see that आप लोग देख सकते हो org.test.controller package present in controller package. Okay, services package present in controller package. And now here I will create a new Java class here. Okay, new class here, and the class name I will say person services guys, person services. And this person services class I created here. Okay, this is our person services class. And now हमें चेक करना है कि इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ कि नहीं हुआ. ओके, वी वांट टू चेक द ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास, okay, is created or not. Okay, so for that I will create public person services one constructor over here. Okay, person services, I will write one constructor here. Okay,
so which will tell me that कि object create हुआ कि नहीं हुआ. Object create, so I will say sys out here. Okay, and I will say person services object, okay, created. Okay, person services object created. I will write this line here. And now I will say spring को मैं बोलूंगा कि spring ये class का object आप ही को create करना है. Okay, spring you have to create the object of this class. So for that, what I will do, I will write one stereotype annotation here, one more stereotype annotation I'm going to use, and that stereotype annotation is the service stereotype annotation. Okay, and in the Spring file, what we have said here, okay, in person-servlet file, that is, this is a Spring file to us. And then in Spring file, what we said here, we said to the Spring को हमने बोला कि Spring please scan this package. Spring ये पैकेज को स्कैन करो. तो Spring क्या करेगा, ये पैकेज को स्कैन करेगा. कौन से पैकेज को, org.test.controller पैकेज को स्कैन करेगा. Okay, inside this package, whichever stereotype classes are present, whichever, okay, up to this time we write only person controller class there. Okay, person controller only stereotype class we write there. Okay, because the annotation we write there controller annotation. So along with this package, okay, along with this package, ये क्या करेगा, इसके सब पैकेजेस को भी स्कैन करेगा. इसके सब पैकेजेस, कौन सा पैकेज हमने सब पैकेज लिखा इसके अंदर में हमने सर्विसेज वाला सब पैकेज लिखा है गाइस. ओके, वी राइट सर्विसेज सब पैकेज देयर. सो इन सर्विसेज सब पैकेज हमने पर्सन सर्विसेज लिखा है, तो इसको भी वो स्कैन करेगा. यानी ये तो पैकेज स्कैन करेगा ही करेगा, क्योंकि इसके अंदर में जितने भी सब पैकेज है उसको भी स्कैन करेगा और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करके, यानी जितने भी स्टीरियोटाइप वाले क्लासेस है उसके ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करके क्या करेगा, अपने कंटेनर के अंदर में पुट कर देगा. कंटेनर के अंदर में पुट, स्प्रिंग कंटेनर के अंदर में पुट कर देगा. ओके, स्टोर कर देगा. तो चेक करते कि कंट्रोलर का तो ऑब्जेक्ट क्रिएट हो ही रहा था, सर्विसेज का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. सो फॉर दैट आई विल से रन एज ऑन सर्वर गाइस. Okay, so now we can check on console guys. So now home method executed, but before that we will check object created for PC, person controller के लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ और पर्सन सर्विसेज के लिए, यानी ये दो क्लासेस के ऑब्जेक्ट स्प्रिंग कंटेनर ने अपने पास में रख दिए हैं. बट अभी हमें क्या करना है, what we have to perform here, we have to say, okay, मैं थोड़ा सा पेंट ओपन कर लेता हूँ guys. So now just check this. So we have a Spring container class. This is our Spring container class guys. Okay, this is our Spring container. Let's consider this is our Spring container class. Okay, this is a Spring container, we can say Spring container. Okay, and in Spring container हमने क्या बोला है, Spring container के अंदर में Spring को क्या बोला है कि Spring please create the object of person controller. तो Spring ने क्या करा, person controller का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा. लेट्स से दिस इज a Spring ने क्रिएट करा है, कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा है, पर्सन कंट्रोलर का. सो पर्सन कंट्रोलर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करा हुआ. ओके, एंड देन वी सेट टू द स्प्रिंग प्लीज अगेन क्रिएट वन मोर ऑब्जेक्ट देयर. ओके, विच ऑब्जेक्ट, पर्सन सर्विसेज का भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करा दो. ओके, एंड देन व्हाट इज हैपनिंग हियर, हम ब्राउजर थ्रू, ओके, ब्राउजर थ्रू हम रिक्वेस्ट किसे पास करें गाइस, वी आर पासिंग रिक्वेस्ट टू दी, ओके, वी आर पासिंग रिक्वेस्ट टू दी पर्सन कंट्रोलर को हम रिक्वेस्ट पास करें, पर्टिकुलर यूआरएल हम हिट करते जा रहे हैं.
सो नाउ हमें क्या करना है कि यहां से ओके यहां से हमें पर्सन कंट्रोलर से हम रिक्वेस्ट पास करेंगे। वी विल पास रिक्वेस्ट टू दी पर्सन कंट्रोलर। ओके, पर्सन कंट्रोलर के थ्रू हम पर्सन सर्विसेज के अंदर में कुछ मेथड होगी लाइक फॉर एग्जांपल वी हैव मेथड वन। मान लो दिस इज अ मेथड वन। ओके, वी कैन से M1 हियर। ओके, M1 सर्विसेज बोलेंगे हम उसे, ये सर्विसेज M1। ओके, like for example we write one more service here। ओके, M2 ये सर्विसेज हम यूज करना चाहेंगे। लाइक फॉर एग्जांपल ओके, ये कुछ हम कहाँ से यूज करना चाहेंगे, पर्सन कंट्रोलर यूज करना चाहेगा पर्सन सर्विसेज को। सो अगर आपको कोई भी क्लास की मेथड अगर यूज करना है तो वो क्लास का आपके पास में क्या होना, ऑब्जेक्ट होना। तो मैं पर्सन कंट्रोलर से पर्सन सर्विसेज को यूज करना चाहता हूँ, यानी पर्सन कंट्रोलर आपके लिए क्या बन जाएगा कि ये बन जाएगा कंटेनर। ओके, किसके लिए कंटेनर बन जाएगा, पर्सन सर्विसेज के लिए। सो व्हाट आई विल डू, आई विल से in parent interface I will say in parent interface ओके आपको क्या करना है कि एक मैं डायरेक्ट पैरेंट इंटरफेस के अंदर में आऊंगा, पब्लिक पर्सन सर्विसेज, और इसका एक वेरिएबल मैं पर्सन सर्विस में डिक्लेयर कर दूंगा। एक मैंने वेरिएबल डिक्लेयर, रिलेटेड वेरिएबल। ये पर्सन सर्विस वेरिएबल जो है, ओके, पर्सन सर्विस वेरिएबल जो है, इनफैक्ट यू कैन से हम एक काम करते हैं, हम यहाँ पे डिक्लेयर नहीं करते। ओके, मैं यहाँ पे बोलूंगा न्यू जावा क्लास एंड द क्लास नेम आई विल से पैरेंट कंट्रोलर। एक क्लास हम बना देते हैं। ओके, पैरेंट कंट्रोलर एक हम क्लास बनाते हैं। और पैरेंट कंट्रोलर जैसे पैरेंट इंटरफेस हो गया, तो मैंने एक पैरेंट कंट्रोलर नहीं हम बोल सकते यहाँ पे बोल सकते हैं, हाँ पैरेंट कंट्रोलर बोला तो भी चलेगा, ठीक है। सो नाउ ये पैरेंट कंट्रोलर जो है, पैरेंट कंट्रोलर के अंदर में हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। वी विल से पब्लिक ओके पर्सन सर्विस एंड वेरिएबल नेम आई विल से पर्सन सर्विस। ओके, समथिंग लाइक दैट। और ये पैरेंट कंट्रोलर को पर्सन कंट्रोलर के अंदर में एक्सटेंड कर देते। वी विल से एक्सटेंड, वी विल से पैरेंट कंट्रोलर। ओके, पैरेंट कंट्रोलर। सो पर्सन कंट्रोलर को पैरेंट कंट्रोलर की प्रॉपर्टी मिलेगी। along with that parent controller properties it will get also parent interface properties। okay, so person controller is the child for parent controller and then parent interface। now होम मेथड के अंदर में हम लोग यहाँ पे वेरीफाई कर सकते कि पर्सन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट जो है हमें मिल रहा है, वो ऑब्जेक्ट भी कैसे, पर्सन सर्विस। ओके, मैं बोलूंगा यहाँ पे पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट, पर्सन सर्विस ऑब्जेक्ट, पर्सन सर्विस ऑब्जेक्ट, समथिंग। ओके, ये पर्सन सर्विस, और ये पर्सन सर्विस ऑब्जेक्ट आपको कहां से मिल रहा है, आपको मिल रहा है पैरेंट कंट्रोलर से। ये पैरेंट कंट्रोलर के अंदर में आप देख सकते हो पर्सन सर्विस हमने डिक्लेयर करा हुआ है। ओके, तो नाउ बाय डिफॉल्ट इट विल बी नल गाइस, बाय डिफॉल्ट इट विल बी null whenever home method will get execute। so at that time okay we are using person service, and now you will see person service is the null right now, will be the null right now। okay, at which method, slash url। okay, on slash url okay we are using which object, person service। so now we can see guys, okay, so code is not getting executed because previous वाला कोड पकड़ के रखा है। okay, so now for that I will remove this from server and then parent controller को हमने
पर्सन कंट्रोलर के अंदर में हमने एक्सटेंड करा हुआ है और स्लैश यूआरएल से हमने ये लाइन प्रिंट करी है, बट ये लाइन अभी प्रिंट नहीं हो रही है। ओके, सो मैं वन सेकेंड ट्राई करता हूँ रन एज ऑन सर्वर, नहीं तो हमें टॉमकेट के अंदर से प्रोजेक्ट रिमूव करके प्रोजेक्ट बिल्ड करना रहेगा। ओके, कुछ प्रीवियस वाला कैच पकड़ के रखा है एक्लिप्स ने। Okay, now you can see guys. Okay, now getting execute. Person service object right now is null. Person service object right now is null. Okay, हमारे पास में ये पर्सन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट कंटेनर के अंदर में तो है, लेकिन कंटेनर के अंदर में तो है, लेकिन ये ऑब्जेक्ट हमें इसे देना है। ओके, ये ऑब्जेक्ट हमें इसे देना है गाइस, ये जो ऑब्जेक्ट जो है इसे देना है। ओके, बट इसके पास में ऑब्जेक्ट अभी पर्सन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट नल है। ओके, नल है गाइस। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम पेरेंट कंट्रोलर के अंदर में जाएंगे और पेरेंट कंट्रोलर को बोलेंगे ओके कि स्प्रिंग के पास में ऑब्जेक्ट है और जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा ना उसे क्या करना है, ऑटो वाइड कर देना, ऑटो वाइड कर देना, ऑटो वाइड कर देना। स्प्रिंग को बोलेंगे कि आपके पास में ऑब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट जो है इसके पास में ओके इंजेक्ट कर देना, पर्सन सर्विसेज के अंदर में इंजेक्ट कर देना। नाउ वी कैन चेक गाइस। ओके, रन एज ऑन सर्वर। ओके, चेक करते हैं, स्टिल गेटिंग नल। ऑटो वाइड हमें रिमूव करना रहेगा प्रोजेक्ट। ओके, प्रीवियस वाला कैच उसने पकड़ के रखा है। सो नाउ आई विल से राइट क्लिक एंड रन एज ऑन सर्वर। Yeah, you can see guys, person service object org.testcontroller.services. Okay, right now it is not null, ये object है। Okay, because whenever we print the object of any class, then at that time the toString method of that class, toString method of respected class, okay, does get execute always, does get execute always. So hence हमें class name along with full qualified path, we are getting this class name। Okay, along with full qualified path we are getting class name @some hexadecimal value। Okay, ये टू स्ट्रिंग मेथड प्रिंट कर रही है। सो इसका मतलब इट मीन्स टू से पर्सन कंट्रोलर को ओके पर्सन सर्विसेज का ऑब्जेक्ट मिल रहा है। ओके, मिल रहा है। हम ये लाइन को कमेंट कर देते हैं, फिलहाल में ये लाइन को हमने कमेंट कर दिया। सो नाउ अभी हमने सबमिट यूआरएल से सबमिट यूआरएल से जो कोड हमने यहाँ पे क्या करा था, क्रिएट करा था, जो कोड हमने यहाँ पे लिखा था, that same code we will write, that same code we will write। Okay, that same code we will write inside person services। Okay, in person services class we will write here, we will say person services के अंदर में सर्विस लिखना चाहेंगे, we will say public, return type will be boolean। Okay, return type will be boolean and then okay we will say submit person। Okay, और save person, method name we will say save person and save person को हम बोलेंगे कि आपको पर्सन का एक ऑब्जेक्ट आ रहा है और वो ऑब्जेक्ट आपको क्या करना है, सबमिट करना है। तो सबमिट करने के लिए इसे होना कनेक्टिविटी, तो कनेक्टिविटी आपको कहाँ से मिलेगी, कनेक्टिविटी यू विल गेट फ्रॉम, वी विल से इम्प्लीमेंट स्विच इंटरफेस, वी विल से पैरेंट इंटरफेस को आप इम्प्लीमेंट करो। ओके, पैरेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करो, पैरेंट इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर लिए। तो पैरेंट इंटरफेस के अंदर में आपके पास में कनेक्टिविटी है, सेशन फैक्ट्री है, आपके पास में सेशन फैक्ट्री है, सेशन फैक्ट्री आपको मिल जाएगी, जैसे कंट्रोलर को मिल रही थी वैसे ही मिल जाएगी। तो ये जो सेम लाइन जो है, ये सेम लाइन का कोड मैं पर्सन सर्विसेज के अंदर में आऊंगा और मैं यहाँ पे ट्राई एंड कैच। ओके, गुड प्रैक्टिस टू राइट कोड बाय यूजिंग ट्राई एंड कैच। अभी तक हमने ट्राई एंड कैच यूज नहीं करा गाइस। ओके, बट गुड प्रैक्टिस टू राइट कोड ओके बाय यूजिंग ट्राई कैच। So now in try catch, okay, I will say this line, session factory we are getting from parent interface, then person का ऑब्जेक्ट आ रहा है, ये person का ऑब्जेक्ट आपने सबमिट कर दिया और यहाँ से आप रिटर्न कर सकते गाइस ट्रू। क्या रिटर्न कर सकते, ट्रू रिटर्न। और अगर मान लो कि एक्सेप्शन अगर आया तो आप रिटर्न क्या कर दो, यहाँ से फॉल्स कर दो गाइस।
एक्सेप्शन अगर आया तो रिटर्न क्या कर दीजिए, आप फॉल्स कर दीजिए। ओके, एंड देन दिस सेम सर्विस वी विल कॉल फ्रॉम पर्सन कंट्रोलर। तो पर्सन पर्सन कंट्रोलर के अंदर से हम ये सेम सर्विस को क्या करते, कॉल करते। कॉल करने के लिए आपको क्या लगेगा, पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट। पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट तो मिल ही रहा है ना आपको, आपको पैरेंट कंट्रोलर से पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट आपको मिल ही रहा है। जैसे यहाँ पे हमने प्रिंट कर दी, इसलिए हमने यहाँ पे प्रिंट करके देखा था। तो हम बोलेंगे पर्सन सर्विस, वी विल से ओके पर्सन सर्विस, ओके पर्सन सर्विस, ओके आई वांट टू कॉल योर वन मेथड, ओके विच मेथड, सेव पर्सन मेथड। सेव पर्सन मेथड बोल रही पर्सन का ऑब्जेक्ट भेजो, तो पर्सन का ऑब्जेक्ट हमने भेजा, उधर से इधर क्या आएगा, रिटर्न ट्रू आएगा, नहीं तो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो वी विल से बुलियन, व्हाट वी विल से, ओके बुलियन, क्या बोलोगे, रिजल्ट। एंड आई विल से इफ, क्या बोलोगे, रिजल्ट, ओके इफ रिजल्ट, ओके एंड देन ओके एल्स, ओके एल्स, ओके एल्स we will say okay record not submitted, okay success value, okay और we can say अगर मान लो कि false अगर आया, so we will say error value guys, okay error value already हमारे पास में की है, so then क्या बोलेंगे यहाँ पे, error value guys, error value क्या बोलोगे, कैन नॉट सबमिट रिकॉर्ड, और we can say couldn't, okay submit record, okay this line we can pass, okay either सक्सेस वैल्यू जाएगा, नहीं तो फॉल्स वैल्यू जाएगी, एरर वैल्यू, ओके एंड नाउ गाइस ये हो गया आपका रिकॉर्ड सबमिट। सो नाउ वी कैन चेक इट कि आपका रिकॉर्ड सबमिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। वंस अगेन मैं टॉमकैट के अंदर से प्रोजेक्ट रिमूव कर देता एंड आई विल से रन एज ऑन सर्वर, ताकि एक्लिप्स जो है वो एक्लिप्स पुराना प्रोजेक्ट पकड़ के ना रखे। And now we can check guys, like for example I said like for example I submit record Raju Rao, and Raju Rao is having 22 years of old, and then मैंने कुछ submit कर दिया record and I will say submit guys, okay let's see आपका record क्या हो गया, submit हो गया। So now in this way we are using services from your controller package, यहाँ से हम services को यूज कर रहे हैं। इसका एडवांटेज क्या होगा गाइस, हमने पैरेंट कंट्रोलर अगर लिख दिया, कल जाके अगर आपके पास में ओके वन मोर कंट्रोलर है, मान लो सिटी कंट्रोलर है, तो सिटी कंट्रोलर के लिए आपको लगेगा सिटी सर्विस, तो यू विल से पब्लिक, क्या बोलोगे, सिटी सर्विसेज, ओके सिटी सर्विस क्या बोलोगे, मान लो सिटी सर्विस, एंड इसे भी क्या कर दोगे आप, ऑटो वाइट कर दोगे, ओके इसे भी क्या कर दोगे, ऑटो वाइट कर दोगे। यानी बार बार आपको ऑटो वायरिंग बोलने की जरूरत नहीं है, हमने उससे सुपर क्लास के अंदर में ऑटो वायरिंग कर दी है। दिस सेम ऑटो वायरिंग will receive by each and every controller, each and every controller will receive this, okay auto wiring. So now one more service, okay we would like to write in person services, and that service will be, which service we will say, what we will say, okay कि हमें डेटाबेस के अंदर से कुछ रिकॉर्ड क्या करना है, रिसीव करना है। तो मैंने यहाँ से क्या कर दिया गाइस कि मैंने बोला कि सेव पर्सन की जगह पे आई वांट टू रिसीव लिस्ट ऑफ पर्सन्स, okay list of persons I would like to receive from, okay database, list of persons, okay java.util, and then मैं बोलूंगा get persons, okay get persons नाम के मेथड हमने लिखे, ओके इन विच क्लास वी राइट, पर्सन सर्विसेज के अंदर में कौन सी मेथड लिखे हमने, गेट पर्संस लिखा हमने। और गेट पर्संस मेथड को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे कि बिगिन ट्रांजैक्शन इन बिटवीन बिगिन एंड कमिट, वी विल से
ACS dot create query and बोलेंगे from which table you have to select from persons where status is equals to 0. Okay, status column हमने लिखा है. So now it will return query result. Okay, it will return query result. Okay, so we will say what we will say guys. ओके कि इसे क्वेरी के अंदर में रिसीव करती है. ओके हमने इसे क्वेरी के अंदर में रिसीव करती है क्वेरी. ओके एंड देन वी विल से query dot list method is there which will return the list of persons object whichever record will select by Hibernate. Okay, then all those records we will receive in a list. Okay, list object list. Okay, and इसे हम कास्ट कर देते. ओके जेनेरिक बना देते. we will say person list guys. ये पर्सन लिस्ट और ये पर्सन लिस्ट इसका रिटर्न टाइप हमने लिस्ट लिखा है. सो देन रिटर्न यहाँ से क्या करेंगे गाइस, ट्रू के जगह पे हम बोलेंगे कि पर्सन लिस्ट रिटर्न कर देना. एंड यहाँ से हम रिटर्न क्या करते हैं, नल. यहाँ से रिटर्न क्या करते गाइस, हम नल रिटर्न करते हैं. सो नाउ कौन सी मेथड लिखे हमने गाइस, गेट पर्सन्स मेथड हमने लिखे है. एंड दिस गेट पर्सन्स मेथड जो है, ये गेट पर्सन्स मेथड हम /URL से हम क्या करते हैं, कॉल करके देखते हैं. तो /URL से हम कॉल करके देखते तो हम क्या बोलते हैं यहाँ से कि m डॉट पुट, व्हाट वी विल से गाइस, m डॉट पुट. ओके एंड यहाँ से हम एक की भेजेंगे विच की वी विल पास पर्सन लिस्ट. और पर्सन सर्विसेज का तो ऑब्जेक्ट इसे मिल रहा है पर्सन सर्विस के अंदर में अभी हमने गेट मेथड लिखे. ओके एक मेथड लिखे एंड दैट मेथड इज द गेट पर्सन्स मेथड. गेट पर्सन्स मेथड क्या रिटर्न करेगी, ओके मैं यहाँ पे कमेंट मार देता आपके लिए, विल रिटर्न ओके लिस्ट ऑफ पर्सन्स. ओके एंड विल पुट इट इनटू पर्सन लिस्ट. ओके की के अंदर में पुट कर देगा. एंड दिस की वी विल पास ओके ऑन विच पेज, इंडेक्स पेज. और इंडेक्स पेज पे हम यहाँ पे हमारा इंडेक्स पेज है. ओके और इंडेक्स पेज पे हम यहाँ पे प्रिंट करके देखते हैं. ओके फॉर्म टैग के नीचे मैं यहाँ पे प्रिंट करके देखूंगा गाइस. ओके कि ये प्रिंट हो रही है कि नहीं हो रही है. बोलूंगा OGNL थ्रू कि मेरे को हमें पर्सन लिस्ट प्रिंट करके देखना है. ओके और ये पर्सन लिस्ट हम लूपिंग थ्रू फिर हम पेज पे क्या कर सकते हैं, प्रिंट करके देख सकते हैं. पहले चेक कर लेते गाइस. लिस्ट नहीं है, लिस्ट ब्लैंक है. ओके लिस्ट इज ब्लैंक. व्हाई द लिस्ट इज ब्लैंक, because let's check our database. We will say localhost and php myadmin. Okay हमारा डेटाबेस कौन सा है गाइस, हमारा डेटाबेस स्प्रिंग एमवीसी टेस्ट, दिस इज योर डेटाबेस. एंड इन दैट डेटाबेस पर्सन्स टेबल इज देयर. और उसके अंदर में हमने थ्री रिकॉर्ड्स जो है ये हमने ऑलरेडी इंसर्ट करे हुए हैं. सो नाउ व्हाट इज योर मिस्टेक, लेट्स चेक कि हमने पर्सन लिस्ट बोला है. सो पर्सन लिस्ट जो है हमने पर्सन कंट्रोलर के अंदर में हमने यहाँ से भेजा है पर्सन लिस्ट. पर्सन सर्विस की कौन सी मेथड, गेट पर्सन्स मेथड कॉल हो रही है. ओके SCS सेशन फैक्ट ACS डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन list person list query dot list select star from persons where status is equals to 0, not status is equals to 0. We need to say status is equals to 1 guys. गलती हो गई थी, हमने status 0 वाले रिकॉर्ड रिटर्न करने के लिए पहले. एंड रिमूव I will say run. Okay, so now you can see guys, we will get 3 objects. So object 1, okay, object
ओके थोड़ा सा जूम करके देखते हैं इसे. नाउ यू कैन सी गाइस. ओके दिस इज ऑब्जेक्ट 1, दिस इज ऑब्जेक्ट 2, पर्सन्स का ऑब्जेक्ट, सेकंड ऑब्जेक्ट एंड दिस इज थर्ड ऑब्जेक्ट. So we are receiving three objects, okay, on home page, and this three object we have to display on table, display in table, okay, we want to display in table, table के अंदर में हमें यहाँ पे display करना है guys, ये थ्री रिकॉर्ड जो है. So now in this way we can receive list of records, okay, list of records from controller. हमने रिक्वेस्ट फायर करा, हमने रिक्वेस्ट किसे फायर करा गाइस, वी पास रिक्वेस्ट टू दी कंट्रोलर क्लास. कंट्रोलर क्लास क्या कर रहा है, पर्सन सर्विस की एक सर्विस यूज कर रहा है. विच सर्विस इट इज गोइंग टू यूज, पर्सन सर्विस की गेट पर्सन्स. तो हमने इसलिए पर्सन सर्विस को क्या करा, पैरेंट कंट्रोलर के अंदर में हमने डिक्लेयर करा और उसको बोला ऑटो ऐड कर लो, ताकि ये पर्सन सर्विस ऑब्जेक्ट जो है ये इंजेक्ट हो जाए. कौन इंजेक्ट करेगा, स्प्रिंग कंटेनर विल इंजेक्ट दिस. और हम इसे यूज कर रहे हैं पर्सन कंट्रोलर के अंदर में. ये हो गया, इंजेक्ट हो गया. इंजेक्ट हो जाने के बाद में क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल रूल की अगर आपको कोई भी क्लास की प्रॉपर्टी अगर एक्सेस करना है, यूज करना है, तो वो क्लास का ऑब्जेक्ट आपके पास में होना चाहिए. तो क्या कंट्रोलर क्लास के पास में, पर्सन कंट्रोलर क्लास के पास में पर्सन सर्विस का ऑब्जेक्ट है क्या, हाँ है, ऑटो ऐड करा हुआ है. इसलिए हम पर्सन सर्विस की मेथड यहाँ से क्या कर सकते, कॉल कर सकते. गेट पर्सन मेथड हमने कॉल करा, उसने लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड रिटर्न करा. लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड हमने पर्सन लिस्ट की के अंदर में डाला, ओके, पुट कर दिया, ओके. और वो की जो है हमने कौन से पेज पे भेजा, इंडेक्स पेज पे. सो इन दिस वे वी आर रिसीविंग लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स, ओके, ऑन इंडेक्स पेज. सो नाउ यहाँ ये सेशन के अंदर में हम रुकते गाइस, ओके, यहाँ तक के. सो इन द नेक्स्ट सेशन what we will discuss there, we will discuss there how to display this list of persons record on home page, okay, on home page by using table, how to display those records. And after displaying those records, एक वन बाय वन रिकॉर्ड्स हम कैसे रिट्राइव कर सकते, उसे अपडेट कैसे कर सकते, डिलीट कैसे कर सकते, ओके, ऑल दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट सेशन, ओके. तो अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद अगर आया तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए, ओके. तब तक के मिलते नेक्स्ट सेशन में गाइस, ओके, थैंक यू.